Sir, I rise to move the resolution that the members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 23rd, 2016. Sir, I move the resolution. Yeah. Now, Sri Jadda has moved the resolution, made his support, and now Sri M.J. Akbar will support, and then Jadda has to speak. Okay, now you will speak. उपसभापति जी, 23 फरवरी को जॉइंट सिटिंग में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो स्पीच देश के सामने और पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने रखी, वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है. इट इज़ ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. इट इज़ अ स्पीच फुल ऑफ अचीवमेंट्स. It is a speech which gives an overall view how the country is going forward and taking a big leap towards development under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi ji, our Prime Minister. We all know that in 2014 May, and after that when the President of India spoke in his presidential address, he had outlined the overall vision of the government of NDA led by Shri Narendra Modi ji. In 2015, it outlined the roadmap of how this vision is to be visualized, it is to be realized, and it is to be brought into a reality. In 2016, when President of India spoke before the joint sitting of the Parliament, it was a situation where it was not a speech which desires or aspires. It was a speech with determination, with dedication, with decisiveness to deliver. And it has delivered, and it is the achievements which have been enlisted in this presidential speech. In 2014, when we took over, the economy was looming, and it was coupled with the dysfunctional political system. It was political paralysis at that point of time. It was a stagnation, wherefrom it had to start. And it did not start only, it gained in a very short span of time a momentum which has been seen not by us, but the world today. As I said that we don't desire and we don't only aspire, but we deliver. The goal which we have taken, we have also taken the theme of how we have to go forward, which has been enlisted in the speech of the President. He has said very clearly that we believe in the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas. All sections of the society has to be taken into consideration. They have to be brought into the mainstream. And also to see to it that the development takes place of all sections of the society. Keeping this factor in view, we have developed two-pronged strategy. One is the supplementation, and the another is to increase productive capacity through investment-driven economic approach. So we also supplement wherever it is needed. At the same time, we also try to see to it that we increase the productivity, the capacity through investment-driven economy. We have concentrated on few aspects. Few are the hard aspects, hard assets, and the other are the soft assets. If we talk about the hard assets, it is the transportation, which involves railways, roadways, shipping, and civil aviation. A lot of investment has been done in this direction to see to it that the hard assets go forward and they bring prosperity to the economy. The manufacturing sector has been given due consideration. The power sector has gone forward, not only gone forward, but taken a big leap. Housing for the poor is also one of the basic consideration of this government. To facilitate the farmers, the irrigation has been given a top priority.
And in these hard assets, all the investments is being done to see to it that these are all productive investments, which is going to increase the productivity of the country. It's going to change the scenario of the country, and which gives a big boost to the economy. If we talk about the soft assets, concentration has been there and due consideration has been given to education. Education, not only formal education, but informal education also. We have given due consideration to health. Not only health, but a holistic approach of health. To see to it that we also take care of the preventive and the promotive part of the health. Skill development, this was an area which was practically missing from our whole curriculum, from our whole agenda of development. We never considered skill to be a very important factor which is needed for the development of the country. But Honorable Prime Minister gave due consideration to this skill, and Skill India concept was developed, and skill building was also given the due consideration which was needed. As far as the entrepreneurial ecosystem is concerned, we never thought how we can strengthen the entrepreneur, how we can see to it that the shortcomings which the entrepreneur is feeling, the gaps which is to be fulfilled. So the entrepreneurial ecosystem was also developed. So the core principle of the government in working is that this government is for pro-poor. It is for pro-growth. It is for empowerment. And it is for the principle of minimum government, maximum governance. It wants to bring transparency. And it also wants to develop the concept of Team India concept, that is cooperative federalism. These are the goals with which this country is moving forward under the leadership of Prime Minister. We are trying to bring a change. And in the past 2 years, we have seen that there is a sea change in the political scenario as far as the working is concerned. As far as the working is concerned, if we talk about pro-poor, it is not only a slogan. It is not only a mere epitaph. It is something which is to be done and which has been done in the right perspective. It is pro-poor, it is pro-farmers, it is pro-laborers, it is pro for the vulnerable sections and the weaker sections of the society. If we talk about the growth, it is to boost the infrastructure. Infrastructure को boost देने के लिए हम लोगों ने pro-growth की बात की है. Increase the productivity of the agriculture and the industry, and to create jobs and invest in road, railways, shipping, and also to see that in infrastructure, coal and power plays a major role. ये टोटल इकोनॉमी को एक होलिस्टिक अप्रोच में डेवलप करने के लिए इन सारे एस्पेक्ट्स पर वर्क करने की इस सरकार ने कोशिश की है और उसमें बहुत आगे हम बढ़े हैं. अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें, पिछले 2 सालों में जितनी भी नीतियां बनी हैं, वी हैव टेकन केयर of the most vulnerable and the weaker section of the society, that is the BPL. We have always tried to see to it that the BPL, the poor, should come into the area of APL. They should grow, they should be empowered, they should be given the supplementation which is needed. And that is how we are going forward. The strategy which we have developed is to take care of small and marginal farmers. This area was always ignored. Since long it has been ignored. So that is also one area where we have taken care. Women and youth, both have been brought to the mainstream. We have seen to it that women of this country and the youth should be also empowered and seen to it that they really play the major role in the development of the country. As far as the minimum government and the maximum governance is concerned, thrust has been there on e-governance. In all departments we are monitoring. We are trying to see to it that the governance should be faceless. The governance should be on e-governance, and it should be efficient and it should be transparent. I do not want to remind you of the past days when one was saying that we have got
as far as the coal auction was concerned, it was said to be a zero notional. It is presumptive that the loss has taken place. When we talked about spectrum, you were talking about that the notion, it's notional loss, it's zero loss. And now, after the transparent system of auction, we have all seen that the government has gained not only but lakhs and lakhs of crores of rupees has come to the government exchequer. So this is transparency. We have tried to delete the age-old laws which were redundant, which were not needed, which were creating hurdles in the development and the pace of the country. So we also saw to it that that has to be taken care. As far as the Team India is concerned, it is our Prime Minister who tried to take each Chief Minister into account and to see to it that what type of development has to take place in that particular state. Every state has got its own peculiarities. It has got its own problems. It has got its own strengths and weaknesses. All have to be addressed, all have to be addressed individually. So he took pains to see to it that every Chief Minister has a voice. And as he being a Chief Minister for a long time, he understood the pains of the Chief Minister and also took care of that. The recommendations of 14th Finance Commission of devolution from 32% to 42%, that was done. This was a long-standing demand of the Chief Ministers and the states. It could have been accepted, it could not have been accepted. But the Prime Minister showed the generosity and the essential part of it, that we have to see to it that if India has to grow, the states have to grow, and that is why it was decided to devolve from 32% to 42%. If we talk about the key pillars and we talk about the universal social security services, sir, before 2015, we all understand that this country was neither socially secured nor covered with pension. We could have never have imagined that we could think of having a social security system. We could have imagined that anybody could come into the ambit of a social security. But it was the Jan Dhan Yojana which brought a revolutionary change in the whole economic scenario of the poor man of this country. It was the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana which gave at least the courage to a common man that he can be insured. It was the Pradhan Mantri Suraksha Yojana which gave an opportunity to a common man that he can also make his life secure. It was the Atal Pension Yojana where a common man could think that he can also be a pensionable. It was a dream for it, and that dream has been made to be realized by this government, by the NDA government. That is what I would like to say. This is the sea change. If we talk about the nationalization of banks which took place in 1971, at that point of time it was said कि ये गरीबों का भला करेगा, एक परिवर्तन लाएगा, गरीबों की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा. Since 1971, No, please. Allow me to speak. Please, Since 1971, no, please. the bank holders were only little more than 3 crores. Little more than 3 crores. 71. Please. 71, no comments, please. Since 71 to 2014, the bank account holders were little more than 3 crores. In 1.5 years, under the dynamic leadership of Pradhan Mantri ji, the bank holders are now more than 21 crores, which we have to understand. गरीबों का साथ तो 2014 के बाद हुआ, गरीबों का हाथ तो 2014 के बाद पकड़ा सरकार ने, और उसके बाद not only that, please. No commentary, please. No commentary. When your turn comes, you can reply. Please don't make any such commentaries now. Please. Zero account से, no commentaries. जीरो अकाउंट से शुरू करके 33,000 करोड़ तक इन गरीब आदमियों ने भारत की इकोनॉमी में अपने आप को जोड़ा है. अगर हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो 2.9 करोड़
भारत के गरीब आदमियों ने अपने आप को इसके साथ आत्मसात किया। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 9.3 करोड़ लोगों ने इसमें अपने आप को आत्मसात किया, इसके साथ जोड़ा है। अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो लाखों लोगों ने, रेडी वाला जो बेचारा गरीब पान वाला छोटा व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, जिसने कभी सोचा नहीं था, उसने लाखों लोगों ने अपने आप को पेंशन के साथ जोड़ा है, अटल पेंशन की योजना के साथ जोड़ा है। ये भारत के गरीबों की तस्वीर बदलने वाला, डायरेक्शन देने वाला ये राष्ट्रपति जी का स्पीच रहा है और ये अचीवमेंट्स की बात है जिसको हमने रखने का प्रयास किया। मैडम जी, आपसे हम हिमाचल में भी बात करें। No, please. जहां तक बात है, please. No, जहां तक ये सारी चीजों की बात है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, मैं ये कहूंगा, इट इज नॉट ओनली अ फाइनेंशियल इंक्लूजन, it is not only a financial evolution, it is a financial revolution which has taken place in this country. It is a revolution. रोटी कपड़ा और मकान की हम बात करते थे, हाउसिंग की हम बात करते थे, गरीबों को हम मकान देंगे इसकी बात करते थे। कौन सी स्कीम थी जिसके तहत गरीब, आप, हमारी स्कीम इस प्रकार की है कि हम गरीबी को जड़ मूल से निपटाएंगे, जड़ मूल से समाप्त करेंगे, इसकी हमारी कोशिश है। और इसीलिए मकानों को देने का जहां तक सवाल आया, 2022 तक हम लोगों ने तय किया कि हाउसिंग फॉर ऑल और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको, सब गरीब व्यक्तियों को मकान दिए जाएंगे, इसकी कोशिश होगी। 2 करोड़ हाउसेस टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय 2022। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था, मोर देन 4,25,000 हाउसेस का सैंक्शन ये जो लास्ट गोइंग ईयर है, ऑनगोइंग ईयर में उसके लिए सैंक्शन किया गया और 24,600 करोड़ वेर केप्ट फॉर दिस हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये लास्ट 2015-16 में। सो एक विचार जिसको लेकर के हम चले थे कि हमने उसका में परिवर्तन करना है, गरीब के झोपड़ी में चूल्हा जलाना है, गरीब की झोपड़ी को पक्का मकान देना है, उसके विकास में सहयोग करना है, उसको साक्षात्कार करके उसको प्रयास किया गया है। इस बात को हम कहना चाहते हैं। जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन माय प्रेडिसेसर्स इन द सेंस द प्रीवियस गवर्नमेंट। हर एक की अपनी अपनी इकोनॉमिक सोच होती है, लेकिन हमने कहा कि ये किसानों का देश है, हमने कहा दिस लैंड बिलोंग्स टू फार्मर्स, हमने कहा इट्स एन एग्रेरियन सोसाइटी। लेकिन जो इकोनॉमी आगे बढ़ी है, जिस इकोनॉमी ने अपने आप को देश में, दुनिया में बढ़ाया है, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ पर खेला है, उसको वीकनेस में परिवर्तित नहीं किया है। एग्रीकल्चर वॉज अवर स्ट्रेंथ। एग्रीकल्चर को हमने स्ट्रेंथ के तरीके से देखना चाहिए था, वो हमारी ताकत थी। हम लोगों ने राजनीतिक कारणों से तो कहा कि देश किसानों का है, देश एग्रेरियन सोसाइटी का है, लेकिन हमने अपनी नीतियों से किसान को उसकी स्ट्रेंथ नहीं मानी, उसको हमने वीकनेस में परिवर्तित कर दिया। कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिसके चलते हम कह सके कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकेगा। इट इज इन द पास्ट 2 years दैट वी हैव कंसंट्रेटेड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह अपने आप में क्रांतिकारी योजना है। बहुत दूरगामी प्रयास के, बहुत दूरगामी इसके इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं। 5,717 करोड़ 2016-17 में, एडिशन टू 1,000 करोड़ ऑफ द लास्ट ईयर, यानी 6,717 करोड़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए रखा गया। यह कृषि सिंचाई योजना हम लोगों ने कब सोचा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर खेत को पानी, उसके लिए 500 करोड़ अलग से, पर ड्रॉप मोर क्रॉप 2,340 करोड़, watershed development 1,500 crores, accelerated irrigation benefit program 1,377 crores, soil health card। ये सॉइल हेल्थ कार्ड की कल्पना के लिए 2014 तक क्यों इंतजार करना पड़ा? किसानों का हेल्थ जानना चाहते हो तो उसकी सॉइल की हेल्थ को जानना था। क्या कारण था कि इतने दिनों तक हम लोग इसकी चिंता नहीं कर सके? और क्या कारण था कि सॉइल हेल्थ कार्ड को विकास के साथ जोड़ने का काम इस सरकार ने जो किया है,
और हर एक किसान को सशक्त करने का तरीका, ये एक तरीके से एम्पावर करने का तरीका है जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कोशिश की है। और 14 करोड़ किसान को, होल्डिंग्स वालों को 2017 तक किसान हेल्थ कार्ड से जोड़ दिया जाएगा, इस बात को कहा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मित्रों, यह योजना किसानों की तकदीर को और तस्वीर को, दोनों को बदलने वाला है। यह बहुत ही दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला है, बहुत दूरगामी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। किसान मुख्य धारा में आएगा, किसान आज इंश्योर्ड होगा, किसान आज सिक्योर्ड होगा, किसान आज सही तरीके से अपने जीवन यापन के लिए आगे बढ़ सकेगा। इस तरीके का एक वातावरण इससे बनेगा। हम सब जानते हैं कि फसल इंश्योरेंस के दृष्टि से किस तरीके से उस इंश्योरेंस के नियमों को भी बनाने की आवश्यकता थी। कृषि विभाग ने इसकी गहराई से चिंता की, सरकार ने इसकी चिंता की। इसमें से जो कैप्स लगते थे उस कैप्स को रिमूव कर दिया गया फॉर द सम इंश्योर्ड। इसलिए अब कैपिंग नहीं रहेगी, देयर विल बी नो कैपिंग फॉर द प्रीमियम, सो दैट द मैक्सिमम बेनिफिट किसान ले सके। इस बात का इसमें प्रयास किया गया है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर क्विक असेसमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। हम सब जानते हैं, हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं। जब हम लोग जाते थे और गांव में और किसानों से मिलते थे तो किसान कहता था अभी तो हमको पिछली फसल का ही नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है, आप अगली की क्या बात कर रहे हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल सभी मंत्रियों को सभी स्टेट्स में भेजा और भेजने के साथ ये कहा कि जो वहां पर जो डैमेज के लिए जो फंड्स हैं वो डैमेज का फंड्स तो यूटिलाइज करो ही करो, और जितनी आवश्यकता है वो केंद्र उसको पूरा करेगा। इस तरीके की बातचीत करके हम सब लोग गए थे और कोई आवाज किसानों से नहीं आई कि हमको मुआवजा नहीं मिला। जहां तक मुआवजे का सवाल है, 2014 तक इंतजार करना पड़ा कि हम पहले फसल अपनी 50% बर्बाद दिखाएं, 50% से ज्यादा होगी जब बर्बाद तो हमको मुआवजे के लिए हम हकदार होंगे। प्रधानमंत्री जी ने 1/3 अगर नुकसान हो गया, 1/3 भी नुकसान हो गया तो भी किसान को मुआवजा मिलेगा, इस तरीके की योजना बना करके दी है। और उसी तरीके से और जो फसल का मुआवजा है वो भी 1.5 गुना बढ़ाया, उसको भी 1.5 गुना बढ़ाया, ट्राई टू मेक इट मीनिंगफुल। उसी तरीके से जो फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम की बात है, किसानों को सिर्फ 2% खरीफ पर, रबी पर 1.5%, हॉर्टिकल्चर पर 5%, हॉर्टिकल्चर और ऑयल सीड्स पर 5%, और बाकी सब सरकार देगी। इसका मतलब मिनिमम प्रीमियम, मैक्सिमम बेनिफिट किसान को मिलेगा। इस तरीके की योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अभी तक आजाद भारत में फसल बीमा योजना के तहत 67 इयर्स में ओनली 23% फार्मर्स कवर हुए हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में मोर देन 50%, और वैसे तो 100% की ओर बढ़ने की, अग्रसर होने की हमारी इच्छा है, और उसमें आप सबका भी सहयोग होगा और आप सबका भी सहयोग वांछित होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मिलेगा। और अगर हम इस तरीके से किसानों को अपने फसल बीमा योजना के तहत ले आते हैं तो किसानों का बहुत दूरगामी समय तक इसका लाभ मिलने वाला है और कृषि जगत में एक मौलिक परिवर्तन आने वाला है। एक सिक्योर्ड किसान भारत में खड़ा होने वाला है, जिसको हमको समझने की जरूरत है। इतना ही नहीं, एक इशू था पोस्ट हार्वेस्ट, कि किसान का अगर खेत उसने हार्वेस्टिंग कर ली और उसके बाद उसका खेत में पड़ा हुआ नुकसान हो जाए तो उसको कवर नहीं किया जाता था। अब उसको भी, पोस्ट हार्वेस्ट को भी 14 डेज के तहत अगर जब से हार्वेस्टिंग हुई है तो उसको भी कवर किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता था कि हमारे हिमाचल के किसी गांव में हेल आ गई और सिर्फ नुकसान छोटा सा लोकलाइज हुआ, तो हम कहते थे ये नुकसान तो कोई दायरे में नहीं आता। अब लोकल लेवल पर भी अगर कोई नुकसान होता है तो लोकलाइज्ड नुकसान को भी इस किसान फसल बीमा योजना के साथ जोड़ा गया है। इस तरीके की बातचीत की गई है। अगर हम बात करें एरियर्स ऑफ शुगर केन की, तो 21,000 करोड़ जो शुगर केन का एरियर्स था उसको रिड्यूस करके 720 करोड़ तक ले आकर के खड़ा किया है, और उसको भी पूरा कमिटमेंट के साथ करने की बात है। गन्ने की राजनीति तो लंबे समय तक चलती रही है
और गन्ने पर राजनीति भी लंबे समय तक चलती रही है, लेकिन गन्ने वालों का ध्यान दिया गया है तो इस सरकार ने दिया है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हम सबको मालूम है कि मोर देन 40% इंक्रीज है एफडीआई के इनफ्लोज में। एक सिनेरियो में परिवर्तन आया है, एक देश के विश्वास में परिवर्तन आया है। दुनिया का देश पर विश्वास जमा है। It is now a fastest growing economy. It is now an economy which is above 7.5% of GDP. It is an economy where the inflation is below 5% or 5.4%, sorry. It's an economy where people have faith. They want to participate and see to it that we also want to become the part and parcel of this development process. अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 15 लाख करोड़ रिसेंटली मेक इन इंडिया के तहत यहां पर इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, 15 लाख करोड़। अगर हम स्किल इंडिया की बात करें, ये एरिया ही कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी हम साधारण व्यक्ति का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस स्किल डेवलपमेंट को देखें तो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, कृषि कौशल योजना में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 1700 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। 1500 मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को स्थापित किया गया है और कोशिश की गई है कि हम नौजवानों को स्किल्ड बनाएं, उनको मीनिंगफुल बनाएं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं और उनकी कैपेसिटी बढ़ा करके आर्थिक जगत में वो अपना भी जीवन यापन अच्छे से करें और देश की इकोनॉमी में अपना योगदान करें। इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की तो हम 2014 से पहले की फर्टिलाइजर की स्थिति याद करते हैं तो नो प्लीज हाँ ऑफर आई है वही मैं कहा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। मुझे लगता है आप सारे प्रश्नों का जवाब पूछ लीजिएगा, मैं सब दूंगा। अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यूपीए के समय में एक्यूट शॉर्टेज रहती थी, लेकिन आज हम कहीं नहीं सुनते हैं कि कोई फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है। ये नीम कोटेड के तहत जहां पिलफरेज रोका गया, वहीं प्रयासरत किया गया कि जिसको जरूरत है, जिस किसान को जरूरत है, उस तक फर्टिलाइजर पहुंचना चाहिए और इसको सुनिश्चित करने का योजना बना करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। स्टार्टअप इंडिया में डेडिकेटेड फंड 10,000 करोड़ रखा गया। उसी तरीके से स्टार्टअप इंडिया में नौजवानों के माध्यम से जो काम शुरू किया, उनके द्वारा जो रेज हुआ है वो 35 बिलियन फंडिंग, फर्स्ट हाफ ईयर 2015 में 35 बिलियन फंडिंग हमको उसमें मिली है। आप समझ सकते हैं कि भारत के नौजवानों का कितना बड़ा विश्वास था, जिस विश्वास को भारत के रहनुमा और जो उनको चलाने वाले देश के थे वो पहचान ही नहीं पाए थे। ये जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ तब भारत के उन नौजवानों की ताकत को पहचान सके और उसके कारण आज दुनिया की इन्वेस्टमेंट 35 बिलियन के आसपास आकर के इस देश में हम सबको मिली है। अगर हम गरीबों की चिंता करने की बात करें, गरीब नौजवानों की चिंता करने की बात करें तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा के माध्यम से 2.7 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। 2.7 करोड़ पीपल हैव जॉइंड, दे हैव टेकन द बेनिफिट्स ऑफ मुद्रा बैंक। And not only that, the loan sanctioned is 99,468 crores. 99,468 crores. एक आप सोचिए, गरीब व्यक्ति विदाउट कोलैटरल्स, विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट श्योरिटी, उसके बाद उसको डिस्पर्स हो रहा है 2.7 करोड़ नौजवान उसका लाभ उठा रहे हैं। 99,000 से मोर देन 99,000 करोड़ उसका कैश में उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो अपने जीवन यापन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंटरनेशनल रेटिंग्स है उसके तहत वर्ल्ड बैंक रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 12 स्पॉट्स इंप्रूव किए। वी हैव इंप्रूव्ड बाय 12 स्पॉट्स। अगर हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जाएं तो उसमें हमने 16 स्पॉट्स अपने आप को इंप्रूव किया है। 16 स्पॉट्स हम आगे गए। इस प्रकार से इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो हम नहीं, दुनिया ये मान रही है कि दिस इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दिस इज इकोनॉमी वेयर वी शुड कंट्रीब्यूट, वी शुड कम फॉरवर्ड, दिस इज एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ वेलकम फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट इज ट्राइंग टू सी टू इट दैट इंडिया ग्रोज फास्टर।
ये एक परिवर्तन हम देख रहे हैं। अगर हम सोशल सेक्टर की बात करें, और सोशल सेक्टर में अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो मैं ज़रूर आपसे बताना चाहूँगा, हम लोगों ने प्रिवेंटिव पार्ट और प्रोमोटिव पार्ट की बात तो कही थी, लेकिन हम लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि इस देश में लगभग 2 करोड़ 60 लाख बच्चे प्रति वर्ष पैदा होते हैं। उसमें से 90 लाख बच्चे ऐसे थे जिनमें से 70 लाख का कभी वैक्सीनेशन होता ही नहीं था, और 20 लाख ऐसे थे जिनका पार्शियली वैक्सीनेशन होता था। हमारी सरकार ने रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ रूटीन इम्यूनाइजेशन को टच नहीं किया, लेकिन रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ जो गरीब बच्चे, जो लेबर क्लास के बच्चे, जो आज यहाँ है कल वहाँ है, जो किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो वैगाबॉन्ड्स की तरह आज इधर और उधर कहीं घूमते हुए रहने वाले लोग, जिनका कोई हेल्थ रिकॉर्ड नहीं होता था, ऐसे लोगों को ढूंढ करके 1 करोड़ 42 लाख लोगों का वैक्सीनेशन इंद्रधनुष में किया गया, और जिसमें से 38 लाख बच्चों को टोटली इम्यूनाइज कर दिया गया। हर वर्ष 1% की मात्रा से हम 1% की मात्रा से हम वैक्सीनेशन में, रूटीन इम्यूनाइजेशन में बढ़ते थे। लेकिन 2015-16 में मुझे आप सबको बताने में खुशी हो रही है कि यह वैक्सीनेशन 7% बढ़ा है, 7% बढ़ा है, और 2019 तक इसको हम 90% तक ले जाएंगे। इस तरीके की हमारी कमिटमेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों को पिछले साल टारगेट से पहले ही मैटरनल और नियोनेटल टेटनस से एलिमिनेशन का हम लोगों ने टारगेट पूरा कर लिया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों को उसके लिए सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि इंडिया इज नाउ एलिमिनेटेड फ्रॉम नियोनेटल टेटनस। अब माताओं को, बच्चों को जो जन्म देने वाली माता हैं, और उसी तरीके से नवजात शिशु, ये टेटनस से मुक्त कराया है। इस तरीके का हम आज भारत में खड़े हैं, स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में हम फ्री डायग्नोस्टिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में हम ड्रग्स भी हम फ्री देंगे और दे रहे हैं, इस बात के लिए हम अग्रसर हुए हैं। हमने तय किया, हर प्रदेश में कोई ना कोई ऐसा जिला है जिस जिले के कारण, उसमें कमी होने के कारण सारे प्रदेश की हेल्थ इंडिकेटर्स पर असर पड़ता है, सारे देश के हेल्थ इंडिकेटर्स पर असर पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 184 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे निकाले which were most vulnerable, जिनके हेल्थ इंडिकेटर्स 50% से अच्छे नहीं हैं, वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। ऐसे 184 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने निकाला, और हम लोगों ने तय किया कि इनकी फंडिंग भी हम फोकस डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में करेंगे। 30% हम एक्स्ट्रा फंडिंग करेंगे, लेकिन इनको हम मुख्य धारा में लाएंगे, इन फोकस डिस्ट्रिक्ट्स को हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया। जहां तक एम्स का सवाल है, हम ये कह सकते हैं कि एम्स की जब भी बना, तो चाहे वो पूर्व एनडीए की सरकार में अटल जी के टाइम में बना, या फिर वर्तमान मोदी जी की सरकार में एम्स की ओर हम अग्रसर हुए। टर्शरी केयर के बारे में बातचीत करें तो पहले 6 एम्स केम व्हेन अटल जी वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड आफ्टर दैट द 10 एम्स डिक्लेयर्ड which are coming up, that is under the leadership of Modi ji that it has taken. टर्शरी केयर को हमने ध्यान में रख करके काम किया है। टर्शरी केयर को ध्यान में रख करके हमने काम किया है, और एक एम्स को डेवलप करने के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू द डिटेल्स व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, कि किस तरीके से एम्स की डेवलपमेंट को रोक दिया गया। हम लोगों ने सारी चीजों को सिंप्लीफाई किया, ट्रांसपेरेंट किया, और कोशिश की है कि मिनिमम टाइम में सारे एम्स बंद करके आए। इस तरीके का हमने प्रयास किया है, इसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स ट्रीटमेंट, अमृत। हम सब जानते हैं कि कैंसर की दवाएं बहुत कॉस्टली होगी, उसी तरीके से ये जो इम्प्लांट्स लगते हैं ये भी बहुत कॉस्टली हो गए। हम लोगों ने अमृत मेडिसिन विच स्टार्टेड फ्रॉम ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड नाउ इन ऑल सेंट्रल हॉस्पिटल्स वी आर हैविंग, जहां हमारी कोशिश है कि हम बहुत ही कम दामों में कैंसर की मेडिसिन, इम्प्लांट्स के मेडिसिन और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो दे सकें। आपको जान करके खुशी होगी कि कैंसर के मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स में 60 to 90% दाम कम आ गए हैं, और इसको हम सभी सेंट्रल हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। और इतना ही नहीं,
इसके साथ साथ अभी जैसा कि कहा गया है 3000 जन औषधि में हम जेनरिक मेडिसिन शॉप्स खोलेंगे ताकि गरीब आदमी को मिनिमम प्राइस में अच्छी एफिकेसी वाली दवा मिल सके। इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं। यह हमारी कोशिश है जिसको हमने करने का प्रयास किया। कायाकल्प के तहत हमने स्वच्छ भारत अभियान की जब बात प्रधानमंत्री जी ने रखी तो हम जानते हैं स्वच्छ भारत होना बहुत आवश्यक है और तभी स्वस्थ भारत होगा। और स्वस्थ भारत होना है तो हमारे हॉस्पिटल्स को पहले स्वस्थ होना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स की जिम्मेवारी ली, कायाकल्प का काम लिया और उस कायाकल्प में हमने तय किया कि द हॉस्पिटल्स शुड बी इन्फेक्शन फ्री, द हॉस्पिटल शुड हैव द बेस्ट सैनिटेशन फैसिलिटीज, द हॉस्पिटल शुड हैव protocols, right protocols to be followed, and the hospital should have a right waste management program. इसके तहत हम लोगों ने कंपटीशन रखा। सेंट्रल हॉस्पिटल्स में फर्स्ट प्राइज 5 करोड़ रुपए का, सेकंड प्राइज 3 करोड़ रुपए का, थर्ड प्राइज 1 करोड़ रुपए का। हमने स्टेट्स को एनकरेज करने के लिए स्टेट हॉस्पिटल को 1 करोड़ रुपए का प्राइज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को 50 लाख रुपए का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को और सीएचसी को 10-10 लाख का, इस तरीके के हमने प्राइस रख करके और इनकी कंपटीशन शुरू कराई और इनके प्रोटोकॉल्स के तहत इंस्पेक्शन शुरू किया। इंस्पेक्शंस आर गोइंग ऑन। वी आर ट्राइंग टू सी टू इट दैट ऑल हॉस्पिटल्स फॉलो दीज नॉर्म्स। उसी तरीके से हम उसकी ग्रेडिंग करेंगे और उसी तरीके से हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे ताकि वो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दे सके। जहाँ तक टेलीमेडिसिन का सवाल है, इस नेटवर्क में 50 मेडिकल कॉलेजेस को हम लोगों ने लिया है। एक नेशनल नेटवर्क पोर्टल बनाया है जिसके तहत 50 मेडिकल कॉलेजेस को लेंगे और उनके द्वारा हम कोशिश करेंगे कि हम एक नॉलेज का नेटवर्क बनाएं और उस नॉलेज का ट्रांसमिशन करें। और टेलीमेडिसिन के तहत ईच मेडिकल कॉलेज शुड टेक फ्यू ब्लॉक्स जिनको साथ में जोड़ करके वो काम करे ताकि हम लोगों का हॉस्पिटल पर से रश हटा सके। इस बात की कोशिश है। आपने देखा होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जहां लोगों को एक हफ्ता लगता था, वहां आज 4 घंटे के अंदर काम होता है। वो उसका कारण है कि हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन है और जो उसको टाइम देने की बात है वो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, पेशेंट आता है 4 घंटे के अंदर अपने सारे टेस्ट करा करके वहां से जाता है। दिस इज बीइंग रेप्लिकेटेड इन नाउ ऑल सेंट्रल हॉस्पिटल्स। सभी सेंट्रल हॉस्पिटल्स में हम इस तरीके का कर रहे हैं और हम अपने टेस्ट को भी ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि पेशेंट को भी ऑनलाइन उसका जवाब मिल सके और वो उसको कंसल्टेशन के लिए जहां जाना हो वह भी जा सके और समय पर उसको मिल सके। इसकी कोशिश है। जहां तक सवाल है इंटरनल सिक्योरिटी का, हम जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी स्टेट एजेंसीज के साथ बातचीत करके, फिर चाहे वो विषय नक्सलाइट मूवमेंट को कर्व करने का हो, फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी का भी हो, चाहे वो और कोई विषय हो, हर एक विषयों में सुधार आया है। और उसका मूल कारण है कि स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के एक कन्वर्जेंस करके एक कलेक्टिव अप्रोच लेकर के चलने का प्रयास हुआ है। डिफेंस की बात करें, OROP, ये एक लंबे समय से लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। डिफेंस पर्सनल्स हैड ऑल्सो वो इस बात को समझ चुके थे कि अब ये डिमांड भी किससे करनी है, क्योंकि उनके ध्यान में आ चुका था कि यह डिमांड अगर पूरी करेगा तो वह एनडीए की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करेगा। इस बात को समझ चुका और इसीलिए आज हम कह सकते हैं विद ऑल द फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस एनुअली टू द ट्यून ऑफ 9,000 crores, स्टिल दैट डिमांड हैज बीन एक्सेप्टेड एंड जो फौजियों की लॉन्ग 40 years की डिमांड थी उसको पूरा करके हम लोगों ने दिखाया है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बॉर्डर डिस्प्यूट कब का, 1971-72 तब का बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा था। कोशिश, मैं फिर कहूंगा, यू सी हाउ चेंज टेक्स प्लेस। Change takes place only when the political leaders have got the political will to change it. That is what we have to understand. If the political will is not there, it cannot change. The same government was there, the same apparatus was there, the same situation was there. For 41 years, you were not able to do.
And within a short span of 1.5 years, the Bangladesh disputes was settled. How it was done? It was done because there was a political will of this government to bring change and to see that our neighbors के साथ हमारे रिश्ते सुधरे. उसको हम लोगों ने पूरा किया. अगर हम बात करें India, we are not saying. Internationally it is said that as far as BRICS is concerned, as far as G20 is concerned, as far as WTO is concerned, as far as East Asia Summit is concerned, as far as ASEAN is concerned, India is now one of the leaders who decides the decision making process, and also its view is very important as far as all these international forums is concerned. This is the situation. इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया भी आज अगर राहत की उम्मीद करता है तो वो भारत से करता है. नेपाल में अर्थक्वेक आया, ये हमारी जिम्मेवारी थी. हमारी सरकार ने सूर्यास्त से पहले वहां पर उनको राहत पहुंचाई. ये इतिहास इस बात का गवाह है. उसको पहले पूरा करके दिया. अगर यमन में हमारे लोग फंसे थे, और सिर्फ हमारे ही लोग नहीं फंसे थे, दूसरे देशों के भी फंसे थे, उनको भी अगर राहत दिलाई और इतना बड़ा काम अगर किया है तो इस सरकार ने करके दिया. इसलिए इंटरनेशनली आज हमारी छवि, आज हमारी स्थिति दुनिया के निगाहों में एक सशक्त भारत, एक बढ़ता भारत, एक उज्जवल भारत, एक समर्थ भारत, एक ताकतवर भारत, एक सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत, इस तरीके की तस्वीर बनी है. मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात मैंने कही है उन बातों के साथ आप सब भी समर्थन करेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं. धन्यवाद. रोहित का कत्ल नहीं होता अगर दत्तात्रेय खत नहीं लिखते. रोहित की मौत नहीं होती अगर मोहतरमा स्मृति ईरानी उस पर एक्शन नहीं लेती. रोहित का कत्ल एक इधर कत्ल है.